Hello everyone, welcome to this English class. So my name is Dipali and today in our class we are going to study the first chapter from the book Moment of class 9th, The Lost Child. Okay. So students, the name itself suggests the lost child. मतलब आपको पहले ही आइडिया लग गया होगा कि what is this story is about. But how it comes to that stage वो हमें नहीं पता है, तो that we have to find out when we read the chapter. Okay, so you all will relate to this जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो how they react in a particular situation, you know, their mind is so pure and so generous, एंड वो क्या करते हैं, उनको कभी कभी इतनी क्यूरियोसिटी होती है टू नो एवरीथिंग, to they get attracted to colorful things and whatever people say, so they have this conscious in them that they feel so curious about everything, they want to know everything. Okay, so this is the chapter about that one child who is so curious, who gets so attracted when he sees the things around him, and he goes to one fair, one carnival, कुछ भी बोल सकते हैं, मेला, अपने पेरेंट्स के साथ, एंड वहाँ जाके वो जो उसकी एक्साइटमेंट थी, एवरीथिंग दैट फैसिनेट्स हिम चेंज इनटू अ टेरिफिक इंसिडेंट. सो हाउ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम, that we are going to find out when we read the chapter. Okay, it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि it was a festival of spring. Spring का season कब आता है? मोस्टली in February and March. So वो एक टाइम जो होता है वो spring season का टाइम होता है. So everyone is so happy and people like to go out with their friends and families. वो they like to roam, घूमना पसंद करते हैं, ठीक है. So this was the time when all of them wanted to go out and enjoy their time. उस टाइम पे क्या हुआ, तो ये जो स्टोरी है वो उस टाइम की बात हो रही है, एंड दे आर वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स एंड ऑल द कलरफुल थिंग्स आर अराउंड हिम. सो वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इस लाइन में. गेली मीन्स हैप्पी, क्लैड मीन्स क्लॉथ. ओके, some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming over का मतलब क्या होता है यहाँ पे? When something is full of liquid, that it overflows from that. ठीक है, जैसे आप एक ग्लास ले लेते हैं, उसके अंदर हम पानी डालते जाते हैं एंड जब वो भर जाता है तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो होने लगता है उसमें से. ठीक है, सो यहाँ पे ये लोग ये वाला रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? वाई? बिकॉज दे आर एक्सप्लेनिंग द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ लोग अब जब लोग घूमने निकल रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स राइड कर रहे हैं, कुछ लोग बुलेट कार्ट्स पे जा रहे हैं, एंड वहाँ पे एक ही बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, and he's so full of life, he's so happy that he's enjoying every moment, and उसकी जो वो laughter है, वो happiness है, it is like overflowing. बहुत ही ज़्यादा pleasant face है उसका. he's feeling excited when he's going out with his parents. Okay, come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So now what happened, his parents, when the child is going, अब उसको वहाँ पे तरह तरह की अलग अलग चीजें दिख रही हैं. So he is getting attracted toward those things. ठीक है, lag behind का मतलब होता है was left behind, वो पीछे छूट गया था, एंड उतने में ही fascinated का मतलब होता है attracted. So when he is walking with his parents, वो बीच बीच में रुक रहा था. So his parents are calling him कि come child come. Okay, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स उसको बुला भी रहे हैं, he is going to her parents, but still उसको वो जो चीजें हैं, जो वो चीजें देख रहा है, उसकी आंखें वहीं पे अटकी हुई है. लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसको वो वहां से निकल तो रहा है
बट उसकी आंखों में अभी भी वही चीज़ों की वही जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो टॉयज, वहाँ पे उसकी नज़र अभी भी वहीं पे ही अटकी हुई है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब क्या हुआ? ऑब्वियसली बच्चा छोटा है, ठीक है, उसको जब इतनी सारी चीज़ें मेले में दिख रही है, ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज थिंग्स. सो नाउ जब उसके वो जा तो रहा है उसके पेरेंट्स के बुलाने पर, बट स्टिल उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो टॉय खरीदना है या वो झूले पे जाना है. सो उसको वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उसको बुरा भी लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़ें. एंड ही इज़ फीलिंग वो उसकी जो इच्छाएं हैं उसको दबानी पड़ रही हैं. सप्रेस का मतलब है यहाँ पे टू पुट एन एंड, किसी चीज को कहीं पे खत्म कर देना, रोक देना. ओके, सो व्हेन ही इज मूविंग फॉरवर्ड विद हिज पेरेंट्स, उसको आगे जाना तो पड़ रहा है, बट स्टिल ही इज फीलिंग सम सैडनेस इज देयर इन हिज हार्ट, एंड ही इज फीलिंग सैड कि वो जो वो चाहता है उसके मन में जो चीज है वो कर नहीं पा रहा है. एंड ही इज फीलिंग is feeling that his parents doesn't have that feeling towards what he is feeling inside. कोल्ड यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया बिकॉज वो अपनी पेरेंट्स की आंखों में वो जो जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं, अगर बच्चे कुछ जिद करते हैं तो वो मना कर देते हैं उनको कि नहीं दिलाना है ये वो. सो उसको भी सेम चीज फील हो रही है अपने पेरेंट्स को देख के कि अगर मैं मांगूंगा तो ये मुझे मना ही करेंगे, ये मानेंगे नहीं मेरी बात. ओके, I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने फाइनली जब वो इतनी सारी चीजें देख रहा है, अब वो अपने आप को नहीं रोक सका और उसने अपने फादर को क्या बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए. प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. उसने रिक्वेस्ट करी अपने फादर से कि आई वॉन्ट दैट टॉय. एंड हिज फादर इन दैट फेमिलियर टायरेंट वे. टायरेंट वे का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही क्रूएल, जैसे राजा होता है ना, बहुत ही जैसे ऑर्डर देने वाला, बहुत ही जैसे बोलते हैं ऑप्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन, जो सिर्फ अपनी धौंस जमाता है किसी के ऊपर. सो हिज फादर वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ लुक टूवर्ड्स हिम व्हेन ही रिक्वेस्टेड फॉर द टॉय. एंड उसको वो चीज़ देख के कहीं ना कहीं ऐसे लगा, तो उसने इसलिए अपने फादर का एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया है कि हिज फादर हैड दैट cruel look towards him when he asked for that toy to him. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने उसको पकड़ा एंड बिकॉज शी इज अ मदर, शी हैड दैट सॉफ्ट कॉर्नर. वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए सॉफ्टनेस होती है एक मदर के मन में. सो शी मेल्टेड का मतलब है शी बिकेम टेंडर, शी बिकेम लविंग टूवर्ड्स हर सन, और उसका हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे सामने क्या है. शी वॉज आस्किंग हिम टू लुक समथिंग. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. So उसके सामने क्या था, एक बहुत ही ज्यादा लंबा क्रॉप फील्ड था मस्टर्ड का, ठीक है, गेहूं का एक खेत था. उसकी मदर ने उसको बोला कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, एक गेहूं का बहुत ही खूबसूरत खेत है जहाँ पे येलो येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं. सो उन्होंने उसको बोला कि देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है. सो जस्ट एंजॉय दैट सीनरी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on the footpath." Now, when the child is actually enjoying being with those butterflies and insects, bees which are flying there, then उसकी mother जो है उसको बुलाती हैं कि you come and walk with us on the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunlight. अब क्या होता है,
when that he was enjoying on, you know, walking around, running here and there. So his parents called him to, so you walk with us on the footpath. But वो child जो है वो इतना खुश था, and he was, you know, he ran towards his parents happily, and उनके साथ वॉक करने लगा. बट देन कहीं ना कहीं उसको वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, यू नो, चल रहे थे. इवन व्हेन द चाइल्ड इज वॉकिंग, आप खुद यू नो सोच सकते हैं, हम कभी वॉक करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हमारे साथ, एंड व्हेन दैट समवेयर सम इंसेक्ट इज पासिंग बाय, और कोई फ्लाई होती है, द चाइल्ड गेट्स सो फैसिनेटेड, यू नो, अबाउट दैट थिंग, कि उसको पकड़ना होता है, या उसके साथ उसको कुछ भी टीज करना होता है. सो बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है. दीज काइंड ऑफ थिंग्स, किड्स एंजॉय टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो सेम दैट चाइल्ड वाज आल्सो डूइंग. जब उसके पेरेंट्स बुला रहे थे उसको, स्टिल उसको वो छोड़ के, वो जो इंसेक्ट्स और वर्म्स वहां पे फुटपाथ पे थे, उनको उनके साथ वो एंजॉय कर रहा था. एंड व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, ही वॉक टुवर्ड्स देम हैप्पीली. एंड वो जो इंसेक्ट्स थे वो भी वहां पे उसके वो भी अपनी, यू नो, जैसे कहीं शेड वगैरह में थे, वो वहां से निकल के वो भी थोड़ा सनलाइट लेके एंजॉय कर रहे थे वहां पे. Come child come, his parents called from the shades of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स वापस उसको बुलाने लग जाते हैं, सो वहां पे एक छोटा सा वेल होता है, कुआं, ठीक है. तो वहां पे रेस्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स, दे, यू नो, दे सैट देयर टू हैव लिटिल रेस्ट, बिकॉज दे आर सो टायर्ड, कब से वॉक करके आ रहे थे. सो दे डिसाइडेड टू सिट देयर एंड हैव लिटिल रेस्ट देयर. एंड वहां पे एज पे बैठ के, एंड ही वॉज स्टिल, क्योंकि बच्चे तो उनको तो रेस्ट ही नहीं होता है, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड. सो ही वॉज जस्ट, यू नो, बिजी विद हिमसेल्फ. ही वॉज एंजॉइंग दैट moment very much. He was on his own completely that time. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgetting hands. So here, students, we get to know the different traits of the child. Matlab, he is so on his own self. He's so much enjoying that, you know, outing with his parents. वो भूल ही रहा है कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं बार बार. वो कुछ देखता है, फिर उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है. देन ही सी समथिंग, अगेन ही गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग. अब क्या होता है वहां पे, व्हेन ही इज गोइंग देयर, वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. एंड देयर ही सीज फ्लावर पेटल्स, और वो उसको लेके ही स्टार्टेड एंजॉइंग विद दोज पेटल्स. कलेक्ट करने लगता है फ्लावर्स को, एंड ही इज एंजॉइंग विद दोज फ्लावर्स. Then he sees a dove coming from there. Dove को देखता है, तो उसको देख के वो बहुत excited हो जाता है. Then he forgets the flowers को गिरा देता है, petals को, and he is enjoying that scenery when the dove is flying from there. He is enjoying that moment. And वो जो flowers थे उसके हाथ से वो गिरा देता है. Come child come, they called up to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब क्या हुआ, जब वो बच्चा अगेन ही स्टार्टेड एंजॉइंग, हिज पेरेंट्स स्टार्टेड कॉलिंग हिम अगेन, और फिर वो उसको लेके, बट द चाइल्ड इज स्टिल प्लेइंग. केपर्स मतलब होता है प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट. वहां पे वो कूद कूद के चल रहा है, हाउ द किड्स यूजुअली डू फुटपाथ पे. तो वैसे वहां पे कूद कूद के, हिज रनिंग, हिज वॉकिंग, हिज जंपिंग, एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ चलता है. और ऐसे ही करते करते उसको एक बैनियन ट्री दिखता है, एंड ही गोज टू द बैनियन ट्री, एंड ही स्टार्टेड, यू नो, गैदरिंग थिंग्स फ्रॉम देयर, लीव्स वगैरह. तो बैनियन ट्री ऑफ कोर्स इतना बड़ा होता है, तो दैट चाइल्ड इज एंजॉइंग दैट, यू नो, इज प्लेइंग अराउंड दैट बैनियन ट्री. एंड व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम अगेन, एंड देन दे गोज टू द फेयर. फिर वो जो मस्टर्ड सीड होता है वहां से क्रॉस करके दे गो स्ट्रेट टू द फेयर. वो रास्ता वो क्रॉस कर देते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world
he was entering. Now what happened here, when they crossed the road, they crossed the field also. Now they have entered the village where that fair, that carnival was happening, was taking place. So अब क्या होता है, एकदम से बच्चा एक नए इन्वायरमेंट में चला जाता है और वहाँ पे उसको इतना ह्यूज क्राउड मिलता है, इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पे. इज फीलिंग सो हैप्पी, ही इज एंजॉइंग दैट मोमेंट. उस सारी चीज़ों को देख के, इतने सारे लोगों को देख के. थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है ह्यूज क्राउड, इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, इतना क्राउड होता है. यूजुअली जैसे मेले में अगर आप लोग कभी गए होंगे तो यू मस्ट हैव सीन कैसा क्राउड होता है वहाँ पे. एंड कन्वर्जिंग मतलब गैदरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. वर्लपूल क्या होता है, जैसे हम कोई, जैसे पानी होता है, पानी में जैसे राउंड सर्कल्स जो बनते हैं, दोज आर कॉल्ड वर्लपूल. सो द होल क्राउड, इट वॉज लुकिंग एज इफ द fair, it was surrounded by people, it was like full covered with the people. So इतना huge crowd था वहाँ पे. एंड वो सारी चीजें देख के वो बच्चा इतना अट्रैक्टेड फील करता है, उसको लगता है एकदम से कि वो एक नई जगह पे आ गया है, एक नई दुनिया में आ गया है वो सारी चीजें देख के. सो ही वॉज फीलिंग हैप्पी ऑल्सो एज वेल एज कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि वो कहाँ एंटर कर गया एकदम से. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. Now what happened here, when the child, he just entered the fair. अब वो उस फेयर में एंटर कर चुका है एंड वहाँ पे वो क्या देखता है, एक स्वीट सेलर होता है, एक मिठाई की दुकान होती है जहाँ पे वो मिठाई वाला डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इस तरह की काफी सारी स्वीट्स बेच रहा है. ठीक है. सो नाउ दैट चाइल्ड, और वो जो पूरा सीन है, व्हेन दैट स्वीट सेलर ही इज सेलिंग, उसके पास अलग अलग तरीके की स्वीट्स है. सो इट इज केप्ट ऐसे, जैसे टावर जैसे होता नहीं है, जैसे बिल्डिंग्स बनी होती हैं, एक बिल्डिंग, उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग उसके बराबर में छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, डिफरेंट साइज होते बिल्डिंग्स के. ऐसे ही वो जो स्वीट्स का जो आर्किटेक्चर था, वाई इज द ऑथर इज सेइंग आर्किटेक्चर टू दैट स्वीट सेलर, दैट ही केप्ट द वे ही केप्ट दो स्वीट्स, बिकॉज वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिल्डिंग्स, कोई छोटी कोई नीची, ऐसे इस तरह का वो पूरा सीन क्रिएट किया हुआ था वहां पे उन स्वीट्स की वजह से. सो ही इज रेफरिंग द वर्ड टू द आर्किटेक्चर. ठीक है. और वो इतनी डिफरेंट कलर की स्वीट्स थी, उसके ऊपर जैसे आप स्वीट्स पे देखते हैं गोल्डन कलर का वो जो कवर चढ़ा होता है, या किसी पे सिल्वर कवरिंग होती है. सो ये सारी चीजें स्वीट्स के ऊपर, वो स्वीट्स कवर्ड थी इन सारी चीजों से. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. अब क्या हुआ, चाइल्ड बच्चा ही है, ठीक है, उसको वो सारी चीजें देख के ही फेल्ट सो आखिरकार है तो बच्चा, तो वो स्वीट्स देख के उसको मन किया कि मैं भी थोड़े स्वीट्स खा लूं, थोड़ा सा ले लूं वहां से. और बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी, तो उसने बहुत ही धीरे से, मर्मर का मतलब होता है जैसे धीरे से बोलना, तो अपने पेरेंट्स को उसने धीरे से बोला कि मुझे बर्फी चाहिए. ओके. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब बच्चे ने क्या देखा, उसने वो स्वीट शॉप तो क्रॉस कर दी. अब उसको एक फ्लारिस्ट दिखा, ठीक है, फ्लावर बेचने वाला, और वो एक गुलमोहर, एक काइंड ऑफ अ फ्लावर होता है, ठीक है, तो वो फ्लावर्स बेच रहा था. सो वो जो उसके पास कलरफुल फ्लावर्स थे उनको देख के, गार्लैंड मतलब माला, ठीक है, वो देख के वो बच्चा, उसको फिर से मन करता है कि मैं एक माला खरीद लूं. ठीक है, तो वो फिर से वही दबे मन से अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. ठीक है, यहाँ पे बच्चा फिर से क्यों, वाई ही इज मर्मरिंग अगेन, वाई द चाइल्ड इज नॉट सेइंग दिस विद अ हैप्पी हार्ट. वाई? बिकॉज उसको कहीं ना कहीं ये मन में है कि शायद उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे उस चीज के लिए. दैट इज वाई ही इज फीलिंग के उसके पेरेंट्स, दैट इज वाई ही इज फीलिंग लिटिल शाय, और कहीं ना कहीं हाफ मन से उसको वो चीज बोल रहा है वो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उसको पता है कि शायद वो लोग नहीं सुनेंगे मैं कुछ भी बोलूंगा तो.
But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब क्या होता है यहाँ पे, वो बच्चा when he sees those flowers, अब उसको flowers भी चाहिए. तो बच्चा जिस जिस स्टॉल पे जा रहा है उसको वो सारी चीजें चाहिए, एंड वो अपने पेरेंट्स को बोल भी रहा है, बट उस दबे मन से बोल पा रहा है, वो खुल के नहीं बता पा रहा है. सो उसको लगा कि स्वीट शॉप पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वहां पे उन्होंने जब मना कर दिया तो अब वो फ्लावर्स के लिए भी उसको बोलेंगे कि नहीं, यहाँ से फ्लावर्स नहीं लेने, ये फ्लावर्स चीप है. सो उसको पता है कि कुछ ना कुछ बहाना लगा के वो मना ही कर देंगे. तो दैट इज वाई ही डिडंट वेट फॉर देयर आंसर. उसने वेट ही नहीं किया कि उसके पेरेंट्स उसको कुछ आंसर दें, येस और नो. ही जस्ट मूव्ड फ्रॉम देयर, और वो वहां से भी वो निकल गया. A man stood holding a pole with yellow, green, red and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब बच्चे ने क्या देखा, जब वो और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, he sees अ बलून सेलर. ठीक है, वहां पे एक बलून सेलर है और जिसके पास डिफरेंट कलर के बलून्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, एंड दे आर फ्लाइंग इन द स्काई. और ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ कलरफुल रेनबो इज फॉर्मिंग फ्रॉम दोज बलून्स. और वो इतनी सिल्की, इतनी शाइनी है वो बलून्स. अब बच्चे को वो भी चीज अट्रैक्ट कर रही है. नाउ ही वॉन्ट दोज बलून्स ऑल्सो, and he is so filled with emotions, overwhelming मतलब with those strong emotions, he says कि मुझे अब वो balloon भी चाहिए. ठीक है, so he gathered that courage in him to tell his parents that I want those balloons. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. अब again what happened? When he had that desire to buy those balloons to tell his parents, again उसके मन में ये चीज आई कि अगर वो बलून मांगेगा उसके पेरेंट्स से तो वो फिर से कुछ ना कुछ उसको बहाना बनाएंगे और बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी एज नहीं है बलून्स के साथ खेलने की, यू आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड. ठीक है, ऐसे करके वो चीज उसको फील होती है, एंड ही अगेन मूव फ्रॉम दैट प्लेस. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Now, अब क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा और आगे जाता है उसको क्या दिखता है, एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा. ठीक है, एंड उसके पास एक स्नेक है जो इट इज वो स्नेक चार्मर अपनी बीन बजाता है, फ्लूट यूजुअली जो बजाते हैं. ठीक है, टू मेक दैट स्नेक मूव. सो ही इज प्लेइंग दैट फ्लूट, एंड स्नेक क्या करता है, उसकी मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया इस पैराग्राफ में. हाउ हिज गेटिंग फ्रॉम दैट बास्केट, एंड इसकी जो मूवमेंट होती है स्नेक की इतनी ब्यूटिफुल होती है, इतनी ग्रेसफुली वो वहां से निकल रहा है. एंड इट इज कॉइल्ड मतलब जैसे होता है कोई सर्कुलर मूवमेंट किसी चीज की जब बताते हैं. ठीक है, सो इट इज राउंड राउंड राउंड, उस सर्कुलर मूवमेंट को कॉइल्ड कहा गया है ऑफ द स्नेक. एंड इट इज लुकिंग सो प्लेजेंट, सो ब्यूटिफुल टू द चाइल्ड, एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट म्यूजिक. और वो वहीं पे रुक जाता है थोड़ी देर उस चीज को एंजॉय करने के लिए, टू एंजॉय दैट सीनरी विद द स्नेक एंड सी इट्स मूवमेंट, हाउ ही इज मूविंग दैट द स्नेक. क्योंकि यूजुअली बच्चों को वो चीजें देखने को नहीं मिलती है, स्नेक चार्मर या स्नेक डांसिंग ऑन दैट फ्लूट. सो ये सब चीजें उसको बहुत अच्छी लग रही हैं उसके मन को. ही वॉन्ट्स टू एंजॉय टू द फुलेस्ट. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब यहाँ पे again you can see the child how he is controlling his emotions, नॉट एबल टू एक्सप्रेस मोर. और वो कैसे अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर मारे जा रहा है, किस तरीके से ही इज मेकिंग हिमसेल्फ कंट्रोल ऑल हिज इमोशंस.
अब जब वो स्नेक चार्मर के पास था, अब वो वहां से भी निकल गया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते इतना। वो जो स्नेक चार्मर म्यूजिक बजा रहा है उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो अनप्लेजेंट म्यूजिक है। सो ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट अलाउ हिम टू लिसन टू सच काइंड ऑफ म्यूजिक। सो ही अगेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देयर एंड ही थॉट कि मैं यहाँ से भी चला ही जाता हूँ, बिकॉज माई पेरेंट्स वुड स्कोल्ड मी इफ दे फाइंड आउट दैट आई एम लिसनिंग टू सच काइंड ऑफ म्यूजिक एंड आई एम वॉचिंग सम सच काइंड ऑफ थिंग। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirlpool motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father and mother. अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब बच्चा आगे चला जाता है थोड़ा और, वहां पे उसको एक स्विंग दिखता है, एक झूला दिखता है, ठीक है, जो सर्कुलर स्विंग होता है, ठीक है। वहां पे बड़ आदमी, औरत, बच्चे सब लोग उस झूले पे झूल रहे हैं। अब वो बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा है उस चीज को, ठीक है, और उसको वो देख के अगेन ही गेट अट्रैक्टेड टू दैट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ दैट चाइल्ड अगेन ही गेट अट्रैक्टेड। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चा है, अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें देख के वो फैसिनेट हो गई, ठीक है। सो अगेन अब उसने क्या किया, बहुत ही हिम्मत, बोल्ड मतलब बहुत ही हिम्मत दिखाई उसने, और अपने पेरेंट्स को उसने फाइनली बोला कि नाउ आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट, उस स्विंग पे मुझे जाना है, प्लीज फादर एंड मदर लेट मी गो टू दैट राउंड अबाउट। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर। He looked behind, there was no sign of them. अब क्या हुआ, वो बच्चा अपने आप में इतना गुम हो चुका था स्टॉल्स देखने में, शॉप्स देखने में, इधर उधर की चीजें देखने में, कि वो भूल ही गया कि उसके पेरेंट्स कब आगे निकल गए और वो पीछे ही रह गया। सो अब जब उसने टर्न करके पीछे देखा, व्हेन ही वाज आस्किंग हिज पेरेंट्स, तो ना तो उसकी मम्मी उसको दिखी, ना ही उसके पापा उसको दिखे। तो ही इज लुकिंग हियर एंड देयर, आगे पीछे देखता है, आजू बाजू देखता है, बट उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं दिखते हैं, ठीक है। सो नाउ द चाइल्ड इज लॉस्ट इन द फेयर, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव कम टू नो अ न्यू ट्विस्ट इन द स्टोरी। द चाइल्ड इज लॉस्ट एंड ही हैज नो साइन वेयर हिज पेरेंट्स गॉन, वेयर ही इज इन द फेयर, एंड वहां पे इतना रश है कि वो अब ही इज कम्प्लीटली कंफ्यूज एंड ही इज क्लूलेस दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट।